Hello, guys and girls. I hope you all are well and good. My name is Nishant, and welcome to the official YouTube channel of Eddie4IAS. So, this is an NCRT series going on. We have to discuss class 7th NCRT chapter 5. Okay? We discussed chapter 4 in the last lecture, in the last video. Now, coming on to the chapter 5. The chapter is titled as Women Change the World. It is Women Change the World. Fine. So, the first subtopic, before starting with the subtopic, that can women, just a normal discussion, can women change the world? See, whatever changes we have seen, whether directly or indirectly, women has a contribution. Not at the front end, but at least at the back end. Whatever we are today, there may be some contribution of women also. I am not neglecting, I am not denying the contribution of men. I am not saying that it is the total contribution of women. That may sound a bit feministic. But I am saying there had been some contribution, yes or no? There had been some contribution. If a child takes a birth, both of them have their contribution. The discussion over here is not that the woman should be allowed this and that. That is not the topic of discussion. कि ऐसा होना चाहिए, women को हर जगह होना चाहिए. Sir, women and men have their own features. The men has some features which are specific to something. Women has some characteristics, some features which are specific to something, and we cannot compare them. We cannot compare the characteristics because they are different in themselves. वो अपने स्फेयर में कुछ और ही है और उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. In the last lecture, in the last video, we said कि women housework अच्छा कर सकती है. Now there would be some feministic person कि नहीं, you are devaluing the work. अरे sir, I have just said a statement कि women घर का काम अच्छा कर सकती है. I am not devaluing the work of a woman. I'm not devaluing. आपके दिमाग में ये बात है कि आप डिवैल्यू कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उससे पैसा नहीं कमाया जा सकता. पैसा कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है. पैसा कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है. वुमेन इज अ काइंड ऑफ अ adhesive. It is a kind of a fevicol which keeps the family together. और अगर आपकी फैमिली ठीक नहीं होगी, पैसा का क्या करोगे आप? What would you do of money? पैसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्मली अ सिंपल और नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल मैन पैसा हमेशा अपने फैमिली के लिए कमाता है. उसको वो चाहता है कि मेरी फैमिली ऐसे करे. अकेले से उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बॉयज होते हैं जो स्टार्टिंग की 20s में आपको होता है कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे. As soon as you have a family, you stop thinking of yourself. You always think of your family. So ये जो पैसा कमाया जाता है वो फैमिली के लिए ही कमाया जाता है. और वुमेन का इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है. सो वुमेन हैज अ हैंड व्हेन इट कम्स टू चेंज, when it comes to revolution, when it comes to evolution in the world. So women can change the world. But the problem is, which is discussed in the next subtopic, that is the fewer opportunities and the rigid expectations. Very nice, like very nice. It says
fewer opportunities and rigid expectations. You have given a person rupees 10 in today's era, and you are asking that person to at least get or to at least earn 1 lakh rupees a month. Sir, you have given him an opportunity of rupees 10 only. आपने resources ही नहीं दिए. When there would be no proper resources, when there would be no proper use, not appropriate resources, how can you expect a person to score? Now the fewer opportunities, why there are fewer opportunities? The reason being is stereotypes. Stereotype. What is stereotype? When you think when you make an image of a person, कि लड़का है तो रोना नहीं चाहिए इसको, कि लड़की है तो घर का ही काम करेगी, कि लड़का है तो पैसे ही कमाएगा. क्यों लड़की पैसे नहीं कमा सकती? क्यों लड़का रो नहीं सकता? लड़के के पास फीलिंग्स नहीं होती? क्या लड़का घर का काम नहीं कर सकता? कर सकता है, बट उससे बढ़िया काम करेगी लड़की. उससे बढ़िया काम करेगी लड़की. ऐसा नहीं कि लड़का अच्छा काम नहीं करते, घर का अच्छा करते हैं, बट वो लेवल ऑफ समझ नहीं होती उनके पास. बेवकूफ होते हैं इस मामले में. बीइंग अ बॉय मैं बात बोल रहा हूं, ये बेवकूफ होते हैं. दे कैन नॉट हैंडल अ होम, दे कैन नॉट मेक अ हाउस अ होम. दिस कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ हाउस अ होम इज ऑफ अ वुमेन ओनली. दैट इज अ वेरी नाइस कैपेबिलिटी, वेरी नाइस. We idiots, we boys are idiots in making these things. Idiots. I'm saying it openly. We don't have this capability. We only know how to earn money. And earning money is not only a priority in the life. These words may be sounding a bit funny to you. I may be sounding a bit different from everybody, but you will realize it with the time. So there are fewer opportunities because there are stereotypes. ऐसे नहीं, लड़की ऐसे नहीं करती है, लड़की वैसे नहीं करती है, लड़का को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए. अरे भैया आपने अपॉर्चुनिटीज दी का, क्यों नहीं दी? स्टीरियोटाइप्स है. तो फिर उम्मीद किस चीज की कर रहे हो? उम्मीद किस चीज की कर रहे हो? One of the problem, fewer opportunities and the rigid expectations. So हर एक बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आईआईटी क्लियर कर जाएगा, एनआईटी क्लियर कर जाएगा. हर एक बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आईएएस का पेपर क्लियर कर जाएगा. अरे ही और शी हैज इट्स ओन कैपेबिलिटीज. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. प्रेशर डालना स्टार्ट हो जाते हैं. बेटा दिल्ली गए थे, क्या बना? क्लियर नहीं. कब तक हो जाएगा? अभी तक नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट है. तुम्हें क्या? तुमने कोशिश भी करने की नहीं की ना, चुप बैठो एंड से इट ओपनली कि हाँ नहीं हुआ. ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिज्म, ऑलवेज रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म. बेइज्जती कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, पता है, करो. रेडी, ऑलवेज रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म. बट आप क्रिटिसिज्म को वेलकम करना तब स्टार्ट करोगे जब आपके सोचने और समझने का लेवल कुछ और होगा. वो लेवल कैसे चेंज होगा? मेडिटेशन से. मेडिटेशन से. It would hardly make a difference for you. तुम घटिया हो, बदतमीज हो, तुम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, तुमसे कुछ होगा नहीं. नहीं होगा. लोगों की उम्मीदें इस हद तक गिरा दो कि अगर तुम छोटी से छोटी चीज भी करो तो लोगों को लगे अरे हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी इससे, है ना. उम्मीदें गिरा दो लोगों की. और उम्मीदें
गिराओगे कैसे? जब ऐसे जवाब दोगे। और ये जवाब कब दे पाओगे? जब दिमाग से शांत होगे, जब तुम्हें कुछ दिल पे लोगे ही नहीं तुम, क्योंकि तुम्हारा सोचने और समझने का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है मेडिटेशन से। These enlightened souls, look at the stability of their mind. मतलब आप उन्हें कहीं भी खड़ा कर दो, they always think of meditation. बस कहीं पे भी, कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में होंगे, वो अपना एक ही काम करेंगे, स्टेबल माइंड। लेवल कुछ और है, भगवान बुद्ध का लेवल कुछ और है, स्वामी विवेकानंद का लेवल कुछ और है, रामकृष्ण परमहंस जी का लेवल कुछ और है। वो लेवल क्रिटिसिज्म, हाँ। हम क्या करते हैं? हम हाथों हाथ रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। गुस्सा करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गुस्से पर रिएक्ट करना इज अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? सब्र, वेट, दिमाग शांत रखो। कैसे रहेगा? सब्र रखोगे। सब्र कैसे आएगा? मेडिटेशन से आएगा। मेडिटेशन इज अ वे टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। क्या बकवास कर रहे हो यार? कॉन्सेंट्रेशन is a benefit of meditation, but meditation cannot only for concentration, is not only for concentration. Meditation and concentration is a different thing. Closing your eyes and concentrating at a point is not a meditation. I'm sorry to say, if you might have heard this, I'm sorry to say, this is my own experience. It is not concentrating at a point. अगर आप एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, जस्ट ट्राई इट वंस, सर दर्द होने लग जाएगा, आई एम श्योर। सो ऑल दीज थिंग, fear opportunities and rigid expectations, obviously it would attract, this situation will attract criticism. How will you handle it? Meditation. Now, learning for change. So this topic covers कि किस तरीके से women were not allowed to, nowadays तो कुछ और हो गया है। इन दो पॉइंट्स को हम कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, लर्निंग फॉर द चेंज एंड द नेक्स्ट इज द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो पहले का टाइम कुछ और था, women were not allowed to study, they were not allowed to read and write। धीरे धीरे वो चेंज आने लगा। आज की सिचुएशन कुछ और है, वो क्या है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, कहानियां थोड़ी सुनाऊंगा यहाँ पर खड़ा होकर अब मैं, ठीक है। तो स्कूलिंग एजुकेशन टुडे, वो डेटा वगैरह दिया हुआ है, वो सब कुछ दिया हुआ है, मैरिज से पहले क्या होता था, मैरिज के बाद क्या होता था, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, यू कैन रीड इट, सिंपल लैंग्वेज। नाउ ये जो ट्रांजिशन आया, ये जो लर्निंग फॉर चेंज आया, ये जो स्कूल और एजुकेशन टुडे हम देख रहे हैं, वो कैसे आया? वुमेन कैन चेंज, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, है ना टॉपिक ये हमारा। तो वो आया वुमेन की मूवमेंट से। वुमेन ने मूवमेंट की, किस तरीके की मूवमेंट की? कैंपेनिंग। 2006 के अंदर 2006 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की लीगल प्रोटेक्शन की बात की गई। 1997 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई है वर्क प्लेस पर जो वुमेन के साथ होते। तो ये कैंपेनिंग की, ये रियलाइज करवाया गया कि भैया दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। हाउ वुड गवर्नमेंट नो द प्रॉब्लम? डज गवर्नमेंट विजिटेड योर वर्क प्लेस? नो। सो यू वुड कैंपेन कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। दे कैंपेन्ड कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो लीगल प्रोटेक्शन मिली। द सेकंड वे इज रेजिंग अवेयरनेस। तो कैंपेनिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिंग अवेयरनेस ओनली। वो आपको चाहे पोस्टर्स लगा के कर सकते हो, चाहे किसी तरीके से कर सकते हो। द थर्ड वे और द थर्ड फैक्टर इन वुमेन मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट इज प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करना। आप प्रोटेस्ट करते हो। नेक्स्ट इज द शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी, इकट्ठे होना कि ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, हम और हैरेसमेंट नहीं सहन कर सकते, हम और डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहन कर सकते। सो दिस लर्निंग फॉर चेंज,
जो आज हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसके अंदर सेंसस के बेसिस पर, कितने लोग लिटरेट है, इतने लोग पढ़ रहे लिख रहे हैं, इतनी वुमेन पढ़ लिख रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स मूवमेंट। उन्होंने अवेयरनेस की, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन की बात की, उन्होंने सॉलिडारिटी शो की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। So this is the chapter women change the world, and yes, women can change the world. I am not saying that the men cannot change the world, yaar. Women can change the world. Fine. So that's all in this lecture. See you in this lecture. By then, take care.